السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ ساتھیوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے گرامر کا، یعنی اردو قواعد کا، اردو ویاکرن کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور ہماری 3-4 کلاسیں ہو چکی ہیں اردو قواعد کی، اور اردو قواعد کی جو کلاس ہے ہماری بہت امپورٹنٹ کلاسیں ہو رہی ہیں، یعنی آپ ان کلاسوں کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، یعنی بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور آپ کو ایک بار میں اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ان کو آپ بار بار دیکھیے اور اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بڑھیا فائدہ ملے گا، بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ اب ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے 3-4 ٹاپک ہو چکے ہیں اردو گرامر کا، ہر ٹاپک سے 2-3 نمبر کا کوسچن، یعنی جو کلاسیں ہماری ہو رہی ہیں ہر کلاس سے 2-3 نمبر آپ کنفرم مان کے چلو۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے بغیر اسکیپ کیے ہوئے ایک بار میں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا دوسری بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا فائدہ ملے گا۔ اب ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یعنی اردو قواعد ہمارا چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ اردو قواعد کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ اس کے اندر اردو قواعد کے اندر ہے زمانہ۔ زمانہ سے آپ سمجھ رہے ہو کہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ اردو میں بولے تو زمانہ، اور انگلش میں بولیں تو کیا بولیں گے؟ ٹینس بولیں گے۔ انگلش میں کیا بولیں گے؟ زمانہ کو ٹینس بولتے ہیں، اور ہندی میں زمانہ کو بولتے ہیں کال۔ کیا بولتے ہیں بچوں؟ ہندی میں بولتے ہیں کال، یعنی زمانہ کو انگلش میں ٹینس بولتے ہیں اور ہندی کے اندر کیا بولتے ہیں؟ ہم آپ کو ہندی اور انگلش کے مدد سے آپ کو اردو پڑھنا لکھنا اور گرامر کا ٹاپک ہم آپ کو کور کرا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہم پڑھاتے ہیں آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ کال کہتے ہیں زمانہ کو، یعنی کال یعنی سمے۔ زمانہ کا مطلب ہوتا ہے وقت۔ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ وقت، ٹینس یعنی ٹائم، کال یعنی سمے۔ تو زمانہ کے حساب سے، زمانے کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ کیا ہے؟ زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ اب جو زمانہ ماضی ہے یہ کیا ہے؟ اس کو ہندی میں بولیں تو کیا بولیں گے؟ بھوت کال، یعنی بیتا ہوا کال۔ کیا بولیں گے؟ بیتا ہوا سمے کو ہم کیا بولتے ہیں اردو کے اندر؟ زمانہ ماضی۔ آپ سمجھ رہے ہو، آپ نے پڑھ رکھا ہے، بھوت کال پڑھ رکھا ہے۔ کیا بولیں گے اس کو؟ یعنی زمانہ ماضی اردو میں بولتے ہیں، یعنی بیتے ہوئے سمے کو، بیتے ہوئے کال کو، اور ہندی میں بھوت کال بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہندی کے اندر بھوت کال بولتے ہیں، اور انگلش میں بولتے ہیں اس کو پاسٹ۔ بیتے ہوئے ٹائم کو، بیتے ہوئے سمے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں بچوں؟ پاسٹ بولتے ہیں۔ اور آگے زمانہ حال، یعنی حال، یعنی جو زمانہ حال یعنی جو ٹائم اب چل رہا ہے، موجودہ جو ٹائم اب چل رہا ہے، ہندی میں اس کو بولتے ہیں ورتمان، یعنی ورتمان میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو اردو کے اندر ہم کیا بولتے ہیں؟ زمانہ حال، یعنی حال میں جو کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ حال۔ اور انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ زمانہ حال کو پرجنٹ، یعنی جو پرجنٹ میں چل رہا ہے، انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ پرجنٹ۔ زمانہ حال کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پرجنٹ بولتے ہیں، اور زمانہ حال کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ ورتمان کال۔ پرجنٹ انگلش میں پرجنٹ کال بولتے ہیں، اردو کے اندر زمانہ حال بولتے ہیں، اور ہندی کے اندر ورتمان کال بولتے ہیں۔ اور آگے زمانہ مستقبل۔ کیا ہے؟ زمانہ مستقبل۔ زمانہ مستقبل یعنی بھوشیہ، یعنی آگے جو ہوگا، آگے جو ہم کام کریں گے، یعنی بھوشیہ میں جو کام ہم کریں گے اس کو انگلش میں بولتے ہیں فیوچر۔ کیا بولتے ہیں؟ فیوچر۔ اور زمانہ مستقبل اردو کے اندر بولتے ہیں، اور فیوچر بولتے ہیں انگلش کے اندر، یعنی آگے آنے والے سمے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ زمانہ مستقبل۔ ہندی میں بولتے ہیں بھوشیہ، انگلش میں فیوچر، ہندی میں بھوشیہ، اردو میں بولتے ہیں زمانہ مستقبل۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ
ज़मानों के बारे में समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फ़ैल। फ़ैल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। फ़ैल किसे कहते हैं? फ़ैल का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? फ़ैल को क्रिया बोलते हैं। उर्दू के अंदर फ़ैल, और फ़ैल को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? फ़ैल को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। आप इससे अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह से इसके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो इनको नहीं जानते। तो मैं इसको सबके लिए, सब बच्चों को एक नज़र से, एक उसमें रखते हुए आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा हो जाए, और जिनके पास पहले से आता है उनका और अच्छे तरीके से उनके पास आ जाए। फ़ैल यानी वर्ब, हिंदी में बोले तो क्रिया। अब फ़ैल है माजी, फ़ैल हाल। क्या लिखा? फ़ैल माजी यानी जो काम बीते हुए ज़माने में हुआ, यानी माजी गुजरे हुए ज़माने में। फ़ैल हाल यानी जो काम प्रेजेंट में, वर्तमान में हो रहा है, यानी हाल में, मौजूदगी में हो रहा है, फ़ैल हाल। फ़ैल मुस्तकबिल यानी जो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जो काम होगा वो किसके अंदर आएगा? फ़ैल मुस्तकबिल के अंदर। साथियों, आपके ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे हम क्या लिखें, मिसाल के तौर पर आपको हम समझाएं, अहमद, क्या लिख रहे हैं? अहमद खाना अहमद बाज़ार। क्या लिखें? अहमद बाज़ार गया था। क्या लिख दिया? अहमद, मिसाल के तौर पर अहमद बाज़ार गया था, यानी कब गया था? बीते हुए समय में, यानी जो समय, जो वक्त बीत गया उसमें अहमद कहाँ गया था? बाज़ार गया था। लास्ट में था आ रहा है, आपने पढ़ रखा है, था, थी, थे, कुछ भी आता है तो किसके लिए आता है? गुजरे हुए ज़माने में आता है। यानी फ़ैल माजी यानी माजी के ज़माने में, यानी भूतकाल में जो काम हो चुका है उसमें क्या आता है? था आता है। अहमद बाज़ार गया था, यानी कब गया था? पहले गया था। कब गया था उसका हमें मालूम नहीं कि कब गया था, लेकिन गया था। तो क्या हो गया? फ़ैल माजी। तो जब काम कौन से ज़माने में हो रहा है? तो काम साथियों हो रहा है फ़ैल माजी, यानी गुजरे हुए, बीते हुए वक्त में काम हो रहा है, तो फ़ैल माजी। और आगे क्या? फ़ैल हाल। क्या है? राशिद खाना खा रहा है। क्या लिखा? राशिद खाना खा रहा है, अहमद खाना खा रहा है। रहा है आए, हूँ आए, हो आए। तो आप समझ लीजिए कि काम कौन से ज़माने में हो रहा है? काम हो रहा है हाल में, यानी प्रेजेंट में हो रहा है, यानी वर्तमान काल में काम हो रहा है आ रहा है, हूँ आ रहा है, हो आ रहा है। तो आप समझ लीजिए बच्चों कि काम कौन से ज़माने में हो रहा है? यानी हाल में हो रहा है, मौजूद में, यानी हाल प्रेजेंट काल में हो रहा है आ रहा है। राशिद खाना खा रहा है, राशिद काम करता है आ रहा है लास्ट में। और इसके लिए आगे फ़ैल मुस्तकबिल। फ़ैल मुस्तकबिल में क्या आएगा? यानी जो काम भविष्य में होगा, यानी फ्यूचर में होगा, जो मुस्तकबिल आने वाले वक्त में होगा, उसको किसके अंदर आएगा? फ़ैल मुस्तकबिल के अंदर आएगा। आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो फ़ैल मुस्तकबिल का आप मिसाल देख लीजिए। अमजद
जय पुर क्या है? अमजद जयपुर जाएगा। क्या आएगा? अमजद जयपुर जाएगा। तो गए, गा, गी, गे आएगा। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हिंदी में आपने पढ़ा है, व्याकरण पढ़ी है आपने हिंदी के अंदर, तो आपको मालूम है कि जिसके अंत में गे, गा, गी, गे आता है तो वो किस ज़माने की बात कर रहा है? वो मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की, यानी भविष्य की बात कर रहा है। अमजद जयपुर जाएगा, जाएगा आ रहा है, गी आ रहा है। आलिमा जयपुर जाएगी, आलिमा बाजार जाएगी, आलिमा रोटी बनाएगी। आपको ये मिसालें लिखी मैंने, अमजद जयपुर जाएगा। अब इसमें अमजद क्या है? मैंने आपको पढ़ा रहा, अमजद क्या है? इसमें क्या है? फाइल। फाइल बोलते हैं काम करने वाले को। फाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। अमजद जयपुर जाएगा, मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, उर्दू कवायद यानी ज़माना यानी टेंस काल, ज़माना की 3 किस्म होती है। ज़माना माजी, ज़माना को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। यानी फ़ैल कहते हैं वर्ब को, हिंदी में बोले तो क्रिया, यानी भविष्य, फ्यूचर, मुस्तकबिल को। फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तकबिल। जैसे मिसाल के तौर पर अहमद बाज़ार गया था, यानी फ़ैल बोलते हैं, फ़ाइल बोलते हैं। फ़ैल बोलते हैं क्रिया को। किसको बोलते हैं? फ़ैल बोलते हैं क्रिया। और फ़ैल और फ़ैल क्रिया को बोलते हैं। फ़ाइल किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को, यानी काम करने वालों को। और मफ़ऊल बोलते हैं जिस पर काम हो रहा है। क्या बोलते हैं? जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पर काम होता है। सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाले को, और फ़ैल बोलते हैं क्रिया को। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में, सरल लफ्ज़ों में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह मुझे आपसे भरोसा है कि आपने हमारी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। आप इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप हमारी जितनी भी क्लासें हो रही हैं, आप उनको बगैर स्किप किए हुए देखिए, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इससे बेहतर तरीके से आपको इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, यहीं रोकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बापों का ख्याल रखिए, और अपने पढ़ाई में 4 चांद लगाइए। अच्छी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।